Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine. Today we are going to start the infinitives. As it is evident with the name of infinitive, finite which is limited, infinitive which is not limited. Finite और infinitives का difference ये होता है कि finite जो verbs होते हैं वो tenses होते हैं. अब tense में एक चीज़ limited में आ जाती है कि अगर is लगेगा और उसके साथ V1 प्लस ING लगेगी. अगर इंडेफिनेट है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ईएस लगेगा, तो वो हम उसको कन्फाइंड कर देते हैं, उसको लिमिटेड कर देते हैं. बट रिगार्डिंग इंफिनिटिव्स, the verb which is not having any tense, simply 2 plus V1 is called infinitive. The definition of the infinitives: the infinitive is a base of a verb often preceded by to. Often preceded by to means अक्सर. Often mean अक्सर. अक्सर में और हमेशा में आप you can find the difference between often and always. अक्सर और हमेशा. हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 प्लस V1 लगेगी तो इट मीन्स कि ये इन्फिनेटिव है. नो, समटाइम्स आप इन्फिनेटिव की दूसरी फॉर्म भी अपने सामने देखते हैं, विच वी विल डिस्कस लेटर इंशाल्लाह. द इन्फिनेटिव इज अ बेस ऑफ अ वर्ब. बेस ऑफ अ वर्ब मीन उसकी रूट है, उसका बेस है, मतलब V1. ऑफन प्रिसीडेड बाय 2. ऑफन प्रिसीडेड बाय 2. अक्सर क्या होता है, इससे पहले क्या आता है, 2 आता है. The word to is frequently used with the infinitives but is not an essential part or sign of it. But this to is not an essential part or sign of it. What we have discussed in the definition, the infinitive is a base of a verb often preceded by to. But remember students, the word to is frequently used with the infinitive but is not an essential part of it. But it is not an essential part or sign of it. For example, birds love to sing. As we have discussed in our previous topic, participles, that participles and main action verb are entirely different. Participle can never play the function of participle can never do the function of the main verb. Same is the case with the infinitive. They formed from verbs. Verb से बनते हैं, लेकिन ये verb का रोल प्ले नहीं करते. ये तो इन्फिनेटिव्स हैं. अब इन्फिनेटिव्स क्या हैं, हम इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हम इनको कैसे मतलब सॉर्ट आउट करेंगे कि इन्फिनेटिव्स क्या हैं. Infinitives, we discussed with the gerunds about infinitives, that infinitives and gerunds are, both of them are having the same uses. One thing. Number two, infinitive and gerunds most of the time play the same role. Number three, infinitives like gerunds are also having the force of noun and verb. They are also called verbal noun because they form from verbs and do the function of a noun. अब आप सोचेंगे कि 2 प्लस वर्ब, 2 प्लस V1 कैसे नाउन का रोल प्ले कर सकती है. सेम ऐसे जैसे हम कहते हैं टीच मी टू स्विम, मुझे तैराकी सिखाओ या मुझे तैरना सिखाओ. टीच मी स्विमिंग. Teach me to swim. To swim is a verb, no, sorry, infinitive. To swim, 2 plus V1. And teach me swimming, V1 plus ING is gerund. Teach me swimming. अब कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे gerund ने उसको रिप्लेस किया infinitive को.
Students, you need to annotate this point on the side of your notebooks with this topic, that infinitives and gerunds often replace each other. Infinitives and gerunds have the same function. They often replace each other. They have the same uses as well. यानी इनकी प्लेस भी वही होती है ना, जैसे उनकी जो यूजेस हैं कि सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, सेम इज द केस with it. Okay, birds love to sing. To respect our parents is our duty. He refused to obey the orders. उसने फ्राइज को मानने से या हुक्म की तामील करने से इनकार किया, करने से. टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी. अपने माँ बाप की इज्जत करना हमारा फर्ज है. अब आप ये देख लीजिए कि टू रिस्पेक्ट में और टू ओबे में या टू सिंग में जो बात हम कर रहे हैं कि गाना गाना पसंद है, परिंदों को गाना गाना पसंद होता है, गाना गाना. अब एंड पे सबके ना नी ने आ रहा है, एंड दैट इज द आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू विच आई टोल्ड यू अबाउट द जेरेंस. अगर आप नोट कर रहे हैं तो यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द जेरेंस, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स इन योर वर्कशीट्स. Infinitives. Thus, after certain verbs, bid, let, make, need, dare, see, here, we use the infinitive without to. अभी पहले हमने बात की, क्या बात की थी? To plus V1. To plus base of verb is called infinitive. It is often preceded by to. हमने ये भी बात की थी, often preceded by to. Frequently, to plus verb is called infinitive, but to is not an essential part or sign of it. ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ to लगेगा तो ये infinitive होगा. अभी हम ये वाले infinitive की बात कर रहे हैं, which is without to. और without to जो infinitive है उसको हम plain infinitive भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Plain infinitive. This after certain verbs, bid, let, make, need, dare, see, here, we use the infinitive without to. As bid him go there, bid him go there, let him sit here, make him stand, I saw him do it, I heard him cry. Now students, you observed it that bid, let, make, need, dare, see, here are the verbs, are the action verbs in the sentences. And in the presence of these verbs, infinitive which are in the sentences are without to. Without to, infinitive will be used in the sentences where certain verbs will be used, like bid, let, make, need, dare, see, here. ये वर्ड्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है. जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स एज अ वर्ब मौजूद होंगे उन सेंटेंसेस में प्लेन इन्फिनिटिव यूज होगा. और प्लेन इन्फिनिटिव क्या होता है? जो कि विदाउट टू होता है, जिसमें टू यूज नहीं होता, सिंपल V1 यूज होती है. गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर. Again and again I am repeating my words that you need to annotate all these notes in your notebooks along with these notes. So I hope it is clear to all of you that these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words. 7 words. You need to memorize these words. कि इनकी प्रेजेंस में टू यूज नहीं होता इन्फिनिटिव के साथ. एंड रिमेंबर, यू विल नॉट मर्ज, यू विल नेवर मर्ज इन्फिनिटिव विद द मेन वर्ब्स. हमने अभी यहाँ पे मेन वर्ब्स जो हैं बिड है, लेट है, मेक है, सॉ है, हर्ड है, तो इनके साथ आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना. इन्फिनिटिव एज अ नाउन काम करता है.
I hope it is clear to all of you. The infinitive without to is also used after the verbs will, would, shall, should, may, might, can, could, must. Remember students, will, would, shall, should, may, might, can, could, must, these are not the auxiliaries. These are not the auxiliaries. These are not the helping verbs. These are the modal verbs. We read the modal verbs in our topics. मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? जिनमें उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है हर एक का. लाइक वुड को हम रिक्वेस्ट के लिए भी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं. शेल और शुड जो है वो नेसेसिटी के लिए भी यूज होता है. मे और कैन जो है परमिशन के लिए भी यूज होता है, और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, और प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज होता है. माइट, कुड जो है वो कैन का पास्ट इक्विवेलेंट भी है, और कैन जो है वो एबिलिटी के लिए भी यूज होता है. और मस्ट जो है वो भी ऑब्लिगेशन के लिए और नेसेसिटी के लिए यूज होता है. आई विल पे द बिल. आई विल पे द बिल. अब यहाँ पे विल आ गया तो हम पे के साथ टू नहीं लगाएंगे. यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्डर. ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. यू मस्ट कम टू द ऑफिस एट 9 टुमारो. तो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास इन्फिनेटिव्स हैं ये यहाँ पे प्लेन इन्फिनेटिव यूज हुए हैं, विदाउट टू हुए हैं. इनके साथ टू हम ऐड नहीं कर रहे. तो आई थिंक इट इज क्लियर. आपको सिर्फ ये वर्ड्स मेमोराइज करने हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक तो टू, हमारे पास तीन तरह से हम इन्फिनेटिव्स को यूज करते हैं. टू प्लस वी वन जो होती है वो सिंपल इन्फिनेटिव्स होते हैं. और अगर हम एक्शन वर्ब्स के बारे में बात करें तो बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर, इन वर्ब्स के साथ आपने प्लेन इन्फिनेटिव यूज करना होता है. दीज आर द 7 वर्ड्स. अगेन रिगार्डिंग मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स में विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट. अब ये कितने वर्ड्स हैं? 9 वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने प्लेन इन्फिनेटिव यूज करना है. ठीक है. ये आपने इन 14 वर्ड्स को मेमोराइज कर लें अगर, तो आई थिंक देयर विल बी नो इशू विद यू पीपल टू आइडेंटिफाई आइदर इट इज इन्फिनेटिव और द वर्ब. बस आपने इन वर्ड्स को मेमोराइज करना है. जब इन वर्ड्स की प्रेजेंस में आपको V1 मिले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो इन्फिनेटिव है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं है. I think the topic is clear to all of you. 2 plus verb frequently is a part, 2 is frequently is the part of the infinitive. 2 plus V1 is the infinitive. Then आपको मैंने बताया 7 words हैं action verbs में जिसमें आप plain infinitive use करते हैं. उसके बाद हमारे पास मॉडल्स हैं. मॉडल्स में हमारे पास 9 वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्लेन इन्फिनेटिव यूज करते हैं. तो अब आपने ये 14 वर्ड्स मेमोराइज कर लेने हैं और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इन द गिवन वर्कशीट दैट व्हिच इज द इन्फिनेटिव. ऑलराइट स्टूडेंट्स, may Allah bless you with flying colors. Take care. I'll upload the worksheet and you have to identify the infinitives and the plain infinitives. Thank you very much. Take care of you and your family. Allah.